Thank you. Okay, ठीक. Please start, ma'am. हाँ जी सर. Good evening, everybody. And in the last lectures, we have studied about the. मैं थोड़ा सा आपको brief करती हूँ. Good afternoon, Dimple. हाँ जी. And हमने पढ़ा था nutrition, basic nutrition in general, and then we have studied the functions of the cholesterol yesterday. Now, today we'll concentrate on the functions of the proteins. Yesterday, I have explained about the what are proteins, and what are the other functional proteins, or structural proteins, and the classification of the proteins, and essential amino acids. I mean the units of the proteins, which is amino acids, constituents of the proteins, and which are the essential and the non-essential. Okay, non-essential are the 13 ones, and the essential ones are the 9. ठीक है. Now we'll concentrate today on more on the important functions of the proteins, basically. Okay. Now, I'll tell you first of all that protein is a crucial good for health. ठीक है. Crucial भी है, good भी है, और health के लिए भी है. ठीक है. ये सारी चीजें crucial means अपने आप में बहुत important है. So that I have explained it to you yesterday that it's a structural one. जब बचपन में बच्चे को बड़ा होना है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स दे आर प्रोविजन फॉर द एनर्जी ऑल्सो. एक मैंने कल और एक्सप्लेन किया था आपको थोड़ा सा प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन. ठीक है. अगर हम प्रोटीन को स्पेयर करते हैं, हम एनर्जी लेवल के लिए कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स को यूज करते हैं, तो प्रोटीन कैन डू मच मोर इम्पोर्टेंट फंक्शंस फॉर विच दे आर मेंट फॉर एक्चुअली. So now I have to I'm going to explain the 9 important functions of the proteins in our body. So crucial तो बोल ही दिया, for good health बोल दिया, why this is important ये भी हो गया, and then energy and cholesterol levels को छोड़ के जब proteins as a different functions करते हैं, just not to provide only the energy, और बहुत सारे functions है जब हम प्रोटीन को स्पेयर कर देंगे. ठीक है. एंड प्रोटीन को स्पेयर करने के लिए हमने क्या रखा हुआ है अपने पास, देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड द लिपिड्स जो प्रोटीन को स्पेयर करेंगे, एंड देन प्रोटीन दे डू देयर ओन इंपॉर्टेंट एंड गुड फंक्शंस. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे आर ट्रीटेड एज अ गुड क्रूशियल फॉर गुड हेल्थ. ठीक है. In fact, the name comes from the Greek word like proteose, जिसका मतलब होता है primary. ठीक है. So this is crucial and primary. That means first place पे जो आता है, that is a important, very important, comes at the first place, even more important than or as compared to the carbohydrates and the lipids too. Okay. Now you are getting now you will understand that how proteins are important, not even either provided by the provided for the provision of the energy level also. These have the many other functions too. So proteins are made up of amino acids, yesterday I have told you, and join together to form the long amino acids. That I have already told you that basically the amino acids are the basic units of the proteins. एक amino acids, दूसरा amino acid, तीसरा amino acid, and then they are linked with the peptide bond. ठीक है. वो मैंने बताया था कि अमीनो एसिड्स है, एक जगह NH2 ग्रुप होता है और दूसरी जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है हर एक अमीनो एसिड्स में. एवरी अमीनो एसिड विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन, उसका एक हर एक अमीनो एसिड्स में देयर इज एन अमीनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जिसमें एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ से नेगेटिव चार्ज होता है. और एवरी अमीनो एसिड्स एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ से उसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नेक्स्ट अमीनो एसिड्स का, और बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग होती है. ठीक है. तो वो बॉन्ड बन जाएगा, एंड देन 2 अमीनो एसिड्स आर जॉइंड, एंड देन अगेन दूसरी एंड पे भी, एंड देन दिस एंड पे भी. ठीक है. This type maybe suppose this type we have a positive ending amino acid, and this type we have a negative ending amino acids. So the negative ending amino acids पे जाके next एक amino acid will join with the positive ending, and जहाँ पे positive ending है the next amino acids with the negative ending will join. So this type long chain of amino acids बनती जाती है. अब question arises कि
प्रोटीन की फॉर्मेशन कब फिर होगी, तो अमीनो एसिड्स तो जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे. सो आई टेल यू दैट जब भी कम से कम 20 अमीनो एसिड्स जब जुड़ जाते हैं, 20 अमीनो एसिड जुड़ते हैं, और वो वहां पे एक चेन ब्रेक हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये अलग एक फिनोमिनन है जो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है. वो चेन कैसे टूटती है, अब आप सिर्फ ये देखिए कि अमीनो एसिड जुड़ते हैं, अमीनो एसिड जुड़ते हैं, अमीनो एसिड जुड़ते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एंडिंग होती है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्डिंग, दैट्स कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है. और वो पेप्टाइड चेन पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, एंड देन लॉन्ग 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 चेन अमीनो एसिड बन जाती है. और कम से कम पेप्टाइड 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं या 19 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और 20 अमीनो एसिड जब ज्वाइन हो जाते हैं, देन वन प्रोटीन कैन बी फॉर्म्ड. लेकिन अगर सपोज, अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि अगर सपोज चेन बीच में टूट जाती है, 20 अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन नहीं कंप्लीट हो पाता, देन व्हाट हैपेंस, देन दैट इज आल्सो प्रोटीनेशियस नेचर वाला एक मॉलिक्यूल बन जाता है, बट उसको हम एक पेप्टाइड ही बोलते हैं, एनी पेप्टाइड. वो प्रोटीन नहीं होता, एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, फंक्शनल प्रोटीन नहीं होता वो, ठीक है. एंड जैसे इंसुलिन है, इसके और भी 120 130 और बहुत लॉन्ग हंड्रेड्स में भी बड़े लॉन्ग अमीनो एसिड प्रोटीन भी फॉर्म होते हैं, जिसमें फिर मोर देन 100 200 400 और भी बड़े प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स हैं. देन यू हैव टू लर्न, बट दिस इज नॉट इन सिलेबस, बट दिस आई एम गिविंग यू दिस नॉलेज that protein can amino acids how protein can be of any length. I mean, how many amino acids can be joined together and to produce the one protein structure, but minimum of 20 amino acids. ठीक है, 20 amino acids से पहले अगर चेन ब्रेक हो जाती है, then it will be called as a peptide, functional peptide, okay, but not a protein. And proteins are made up of like amino acids and joined together to form the long chains, and it's a long bed of amino acids, you can say. There are 20 amino acids that can help to form the thousands of proteins in the body. अब आपको मैंने बताया कि there are only 20 types of amino acids, ठीक है, एंड 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड जिस जो कि डिफाइन होते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल में. 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका आप सोचिए कि कितनी परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, कि सिर्फ 20 के 20 अमीनो टाइप्स ऑफ 20 है, टाइप्स है, ठीक है. देयर आर ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच बाइंड इन सो मेनी परमिटेशन कॉम्बिनेशंस में बनके single chain, sometimes it's a branch chain also, okay, then they make the proteins. Only 20 types of amino acids है, और कितनी तरह से ज्वाइन होते हैं, कितनी तरह से, और एवरी प्रोटीन जो बनता है इन्हीं अमीनो एसिड से, दैट इज ऑफ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन. किसी में भी सेम कॉम्बिनेशन के अमीनो एसिड्स नहीं होते जो आपको एक प्रोटीन बनाते हैं. एवरी प्रोटीन इज डिफरेंट, एवरी प्रोटीन हैज अ different combination or different chain setup of these 20 amino acids only. So you have to learn the 20 amino acids के नाम याद रख सकते हो आप, essential and non essential में थोड़े से भी. and then ये कितने combinations में बनते हैं, सिर्फ 20 amino acids से you can form a variety of proteins which are functional, which are structural proteins, and the functional proteins all have their basic unit is amino acids. And proteins do work cells and perform their jobs. वो मैंने jobs आपको बता दी हैं कि these they can perform structural and the functional जो होते हैं enzymes होते हैं, they are also proteinaceous in nature, ठीक है. एंड मेन है इसका फंक्शन. अब नाउ प्रोटीन के बेसिकली फंक्शंस पे आते हैं, जैसे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. व्हाट इज ग्रोथ? देखो, एनर्जी लेवल, energy we need, we take instant energy from the carbohydrates, and we have the stored energy in the form of the lipids. फिर vitamins and minerals they also needed for the chemical reactions and the hormonal or the stimulation or the signaling pathways. तो बचे क्या फिर बाद में? और वाटर के फंक्शंस भी we have already studied yesterday that water has to do lot of, water is also an important molecule of the balanced diet and has to do lot of the functions. Now protein सबसे important है, most of the important is a protein one.
अब इसमें ग्रोथ भी आ गया। ग्रोथ में कैसे होएगा कि बॉडी नीड्स अ प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यू। देखो ग्रोथ तो हो गई, तो देखिए सपोज कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स ने ज्वाइन करके ग्रोथ 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 को टिश्यू सेल्स ग्रो करते हैं, बट जब न्यू टिश्यूज पहले वाले टिश्यूज से नया वाला टिश्यू बनेगा तो एक सेल मेम्ब्रेन बनेगी, एंड दैट आल्सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट जो प्रोटीन है दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, integral and peripheral kind of a proteins, they have a part of the membranes, and not only the cell membrane, it's the part of the internal membrane also, and enzymes भी बीच में आते हैं। enzyme they are also functional मेटाबॉलिज्म में, और इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, इतने सारे मेटाबॉलिज्म साइकिल्स हैं जिसमें एंजाइम्स का रोल प्ले होता है। विदाउट एन एंजाइम digestion could not be completed, so enzymes are also proteinaceous in nature. This is also one of the a major function of the proteins. Now body needs protein for the growth and maintenance. अच्छा अब क्या हो गया कि अगर wear tear हो गया, suppose that there is a wear tear to any cell or any tissue, so what happens, their proteins comes वहाँ पे don't you think that carbohydrate and lipids they play a role? No, it's only the protein which can wear tear because it's a part of the membranes, it's part of the tissues. So repair एंड ग्रोथ अगर बड़ा होता है बच्चा, ठीक है, उसमें फंक्शनल है, बॉडी सिस्टम है, सारा चेंज होना है, सो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में प्रोटीन्स दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन growth and maintenance. Okay, and proteins are a constant in constant state of turnover. ठीक है, proteins ऐसा नहीं है, ठीक है, कि suppose lipids हैं, हाँ जी हाँ जी, yes, anybody मैडम, wants to, हाँ, हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। good evening, who's there? मैम सॉरी आई डिस्टर्बिंग यू, सॉरी। It's okay, no problem. माय नेम इज मनदीप सिंह कलसी, आई एम फ्रॉम कुराली हाँ डिस्ट्रिक्ट जी, मोहाली। okay. एक्चुअली मैम मेरे को ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी रिगार्डिंग की जो मेरा कोर्स था डीएनएचई जो मैंने भरा हुआ है, हम्म। तो मैडम इसकी मेरे को डेट कंफर्म नहीं हो रही और मेरा एनरोलमेंट नंबर एक्चुअली मे बी आई हैव फॉरगॉटन मे बी, बट आप माय डियर, आपको इस विषय में कक्षा के एंड में आप बात करेंगे मेरे से। ठीक, सॉरी सॉरी सर, ठीक सॉरी है, हाँ, सर, प्लीज कोई प्लीज बात आप नहीं, कक्षा नो की मर्यादा प्रॉब्लम, को रखिए। ठीक है, सॉरी सर, सॉरी सर, लास्ट में सॉरी लास्ट में बात इट्स करेंगे। ओके, इट्स ओके, आप अपना सॉरी इंट्रोड्यूस सॉरी सर। कीजिए एंड में आपसे, ठीक है, ओके। नाउ विल कंटिन्यू विद द प्रोटीन। ओके, अब एक और फंक्शन है, इसको थोड़ा सा ना यू शुड अंडरस्टैंड द केयरफुली। अब मतलब बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं ऑल द बैलेंस डाइट मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बट अब टर्नओवर से मैं बात कर रही हूँ कि प्रोटीन्स का जो है ना एक टर्नओवर जो नंबर है या टर्नओवर अमाउंट कह लो, आप कुछ भी कह लो, ठीक है, इसकी एक अपनी डेफिनेशन है, ठीक है, उस वो एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ओवरलोड हो गया, ठीक है, और प्रोटीन कम हो गए। ये मैं आपको समझाती हूँ। सपोज लिपिड्स, यू विल टेक लिपिड्स। लिपिड का क्या है, एक स्टोरेज फॉर्म है लिपिड्स की। अगर आप थोड़ा खाते हो, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है एंड देन यू विल पुट ऑन वेट। लिपिड से क्या हो जाएगा, यू विल पुट ऑन वेट, आपका क्वेश्चन है मैस आपका बॉडी का इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इवन फॉर द कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो, कार्बोहाइड्रेट्स का भी ना स्टोरेज का फिनोमेना बहुत है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली विद द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या है, प्रोटीन्स या तो फिर बन जाएंगे एंड देन दे स्ट्रक्चरल बॉडी बनेगी और एक फंक्शनल बॉडी बनेगी, या तो वो वीएटीएल में काम आएंगे या फिर फंक्शनल में काम आएंगे, ठीक है, थोड़ी सी ग्रोथ में काम आएंगे। बट ये ऐसे नहीं है कि एक्चुअली ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स हो। वो लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ही ज्यादा रहते हैं, ठीक है। समटाइम्स इनकी स्टोरेज का कोई फॉर्म नहीं है, दे डोंट गेट एक्चुअली स्टोर्ड एनीवेयर, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, अगर आपका हीमोग्लोबिन है या कुछ, हीमोग्लोबिन में क्या है, हीम इज अ मिनरल, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। आपने अभी कभी देखा है, कभी सुना है कि बहुत रेयरली होता है कि जो प्रोटीन है वो ओवर हो गया हो। सपोज हीमोग्लोबिन ओवर हो गया, उसकी एक लिमिट होती है, जैसे मेल्स में 12 to 15 होगा, 16-17 हो सकता है, कोई 20-25 नो, that will lead to some disease, ठीक है, वो ब्लड की कोई डिजीज हो जाएगी उसको। और अगर लो जाता है तो बंदा एनीमिक हो जाता है, ठीक है। बट अब अगर आप देखो कि लिपिड्स कभी लो नहीं होते किसी के, कार्बोहाइड्रेट कभी लो नहीं होते किसी के, और लिपिड्स लो होते हैं तो वो स्टोर हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर ओवर हो जाते हैं तो वो स्टोर हो जाते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द थिंग विद द प्रोटीन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि प्रोटीन एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए, बट इसका ग्रोथ से भी रिलेशन है, मेंटेनेंस से भी रिलेशन है, बट इसका टर्नओवर जो है, इफ यू हैव द मोर एंड मोर देन इट विल लीड टू द डिजीजेस। अगर
आपके पास प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाएगा, देन ऑल्सो इट विल लीड टू द डिजीज। सो इसका जो टर्नओवर नंबर है वो कांस्टेंट और नियर कांस्टेंट हमें रखना पड़ता है, अदरवाइज अब सपोज कैरेटिन कम हो जाए तो बायोटिन कम हो जाए तो हेयर फॉल होनी शुरू हो जाती है, आपको क्लियर कट बाल्डनेस नजर आनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, और अगर किसी भी तरह के प्रोटीन की बात कर लो आप, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, बच्चों में ग्रोथ फिर रुक जाती है, स्टंटेड हो जाती है, बिकॉज ऑलरेडी carbohydrate, proteins and lipids, they are somewhere related actually with the multivitamins, vitamins and the minerals and the water content, they are already related with one and each other। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कार्बोहाइड्रेट कम होगा अमाउंट तो हमें कोई डिजीज नहीं हो सकती, लेसर है, बट ऐसी कोई ड्रास्टिक डिजीज नहीं, बट एज वी कंपेयर्ड विद द प्रोटीन, protein can lead to so many drastic diseases if they come in a lower amount, and if you find it in a more amount, that will clear cut lead to the diseases, protein related diseases। and एक और बात है, protein related disease, this has to be understood clearly। I have told you that there are 20 amino acids only। ठीक है, और 20 अमीनो एसिड्स ही एक ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हर बार ज्वाइन करते हैं कि हर बार एक नया प्रोटीन जनरेट होता है, और उस एक प्रोटीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, और हर एक प्रोटीन, सपोज प्रोटीन नंबर 1 एंड प्रोटीन नंबर 2, ओके, प्रोटीन नंबर 1 में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द प्रोटीन, आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जांपल प्रोटीन नंबर 1 एंड प्रोटीन नंबर 2। We have a 20 amino acids, so we have a 20 amino acids and protein number 1 में उसका एक सीक्वेंस होगा। ठीक है, so we have one sequence, particular sequence उस प्रोटीन का। तो हर बार जब हम उस प्रोटीन को चेक करेंगे तो हर बार वो एक सेम पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा उस प्रोटीन का, वो कभी चेंज नहीं होगा। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीक्वेंस होगा जिसमें वो ही 20 अमीनो एसिड्स ज्वाइन हुए होंगे, और उसका नंबर भी हर बार सेम ही होगा। सपोज एक प्रोटीन है, प्रोटीन नंबर 1 है, वो 100 अमीनो एसिड्स का है, और वो ही 20 अमीनो एसिड्स हैं जो बार बार एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में 100 टाइम ज्वाइन होके एक 1 अमीनो प्रोटीन बना रहे हैं, विच इज कॉल्ड द प्रोटीन नंबर 1। और एक प्रोटीन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें लेट्स से विल टेक एग्जांपल ऑफ द 120 अमीनो एसिड्स, बट हैं वही 20 अमीनो एसिड्स, वही बार बार ज्वाइन होते हैं, और 120 टाइम्स ज्वाइन होके they'll form one protein number 2। okay, so now there is a function of the protein number 1, specific function, and protein number 2 is a specific function in our body। but can you think then if अगर 100 में से एक अमीनो एसिड कम हो जाए और उधर 120 में से एक अमीनो एसिड कम हो जाए, तो इट विल लीड टू ड्रास्टिक डिजीजेस, एक्चुअली जेनेटिक डिजीजेस, जो फिर आई मीन क्योर करनी भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। बिकॉज ये क्यों हो जाती हैं इन डिजीजेस को, देन विल से दैट दिस इज जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक डिजीजेस क्यों कहते हैं हम, दिस इज बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है शायद ये प्रोटीन का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 20 सीक्वेंस है, एक भी अमीनो एसिड अगर गड़बड़ हो जाएगा देन इट विल लीड टू दी कम भी हो जाएगा, ज्यादा भी हो जाएगा, और कम भी हो जाएगा अगर सपोज 100 वाले का एक कम हो गया 99 हो गया, या 100 वाले का 101 हो गया, 102 हो गया। ठीक है, और या फिर बीच में कहीं जहां पे एलानिन, ग्लाइसिन, उसके बाद मिथ्योनिन था, उसकी जगह कुछ और लग गया। ठीक है, एनी अमीनो एसिड है वही 20 अमीनो एसिड, पर मिथ्योनिन की जगह पे एलानिन आ गया, सपोज पोजीशन चेंज होगी जस्ट ऑफ वन अमीनो एसिड, दैट वुड लीड टू डिफरेंट ड्रास्टिक badly and harmful diseases actually। ठीक है, एंड ये क्यों होता है, एंड ये वाली डिजीजेस ज्यादातर जेनेटिक होती है। जेनेटिक मतलब जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती है, और आपको पता है कि जो इस तरह की जेनेटिक डिजीज होती है वो कंटिन्यू होती हैं वो फॉर डिफरेंट जनरेशंस तक, बिकॉज वो मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज हमारा एक डीएनए है, जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटरी। सो जीन इज मेड अप ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन कहाँ हो गया, एक जेनेटिक मटेरियल के साथ एसोसिएशन होगी, एंड नाउ व्हाट हैपेंस, देयर आर प्रोटीन, वो प्रोटीन सिंथेसिस की हम फॉर्म में जाते हैं जिसको हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, देन व्हेन द प्रोटीन इज गेटिंग फॉर्म, तो जो डीएनए का जो सीक्वेंस है ना, वो उसके ऊपर भी दो pyrimidines होते हैं, वो हमेशा ट्रिपलेट कोडोन में आते हैं, 1 2 3 दे आएंगे, एंड दे विल मेक वन
वन अमीनो एसिड, ठीक है। डीएनए से सीक्वेंस आ रहा है जिसमें पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रिपलेट कोडोन्स में आती है। एक ट्रिपलेट कोडोन एक अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। एक अमीनो एसिड बन गया, फिर अगला ट्रिपलेट कोडोन आएगा, दूसरा अमीनो एसिड, इसका मतलब जो जीन्स में, जो डीएनए में पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो कोड किस में हो रही है, आगे 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 ट्रिपलेट कोडोन में आके क्या बन रहा है उससे आगे अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से क्या बन रहा है आगे प्रोटीन्स। इसका मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसमें अगर एक भी कोड गलत हो जाता है और इस प्रोटीन का एक भी अमीनो एसिड गलत हो जाता है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रॉन्ग होगी, वही की सारी इंफॉर्मेशन देन इट विल बी ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट जनरेशन, एंड जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें भी वो जीन डिफेक्टिव हो गया, ठीक है। ओवर होने से भी, कम होने से भी नंबर, नंबर ओवर होने से भी, एंड द सीक्वेंस और द प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर amino acid when it gets changed it will lead to the drastic harmful diseases and that would continue in the to the different generations। वो भी एक अलग बात होती है कि अगर उसमें रिसेसिव या डोमिनेंट हो, वो एक अलग बात होती है, बट इट विल गो in the generation and the diseases होंगी वो genetically inherited होंगी। So you can think that how important are the proteins for the growth and maintenance and for the repair and for maintaining the genetic information and for maintaining the health of the person genetically, ठीक है। एंड कैसे ये जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं सारे के सारे ट्रेट्स, ठीक है। पीपल रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरी, अगर आपने कभी देखा है कि अगर पीपल कोई भी एक बंदा है उसको प्रोटीन्स देने होते हैं, जब वो एक्सरसाइज करता है तब भी वो प्रोटीन्स खाता है, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स दे डोंट डू मच बिकॉज व्हेन यू डू एक्सरसाइजेस वेट होगी, ठीक है, टिश्यूज की इंटरनल होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, देन ऑल्सो यू नीड द प्रोटीन्स फॉर रिपेयर, ठीक है। एंड रिपेयर के बाद उसकी ग्रोथ, देन बॉडी की ग्रोथ, चाहे वो एक सिंपल एक्सरसाइजर बंदा है, चाहे वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, दे ऑल्सो नीड प्रोटीन्स, ठीक है। और चाहे वो एक ग्रोइंग किड्स हैं, आपको पता है हम बहुत सारे प्रोटीन्स के सॉल्यूशंस, आई मीन आई डोंट वांट टू नेम द डिफरेंट प्रोटीन सॉल्यूशंस, मिल्क में डाल के, मिल्क बहुत जरूरी होता है, और जो प्रोटीन के अदर सोर्सेज हैं दे आर very much important for growth and maintenance and for the genetically inherited। Just try to understand these, if you'll read then you'll understand, ठीक है। causes biochemical reactions, अब क्या है, अब सिर्फ सिंपल मैंने ये क्या कहा था कि बायोकेमिकल रिएक्शंस, अब फिर से वही बात आ गई, इसका मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया। अब सपोज ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस किसका मेटाबॉलिज्म है, दैट इज अ कैटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज, ग्लूकोज से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आता है, देन देयर वुड बी अ डिफरेंट एंजाइम व्हिच विल ब्रेक, हेक्सोकाइनेज आ गया, उसने उसको ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किया, फिर आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आगे आगे एवरी स्टेप, I mean glycolysis का जो every step है that needs a different enzymes which break down to the one molecule of the glucose to other molecule and the other molecule to the another molecule to another molecule and completes the whole circle। And in every step the enzyme we need that is proteinaceous in nature। अब suppose enzyme proteins नहीं होंगे, ठीक है, तो enzymes नहीं होंगे, और वो enzyme से particular होगा, I mean जो एक first step पे जो protein function करता है ना, that protein or the enzyme which is needed at the one step of the chemical reaction that is needed only there। ये नहीं है कि उसकी जगह आगे कोई और फंक्शन कर देगा। सो प्रोटीन्स की और एंजाइम्स की ये स्पेसिफिसिटी इसके साथ बहुत जुड़ी हुई है, जो फंक्शन जो प्रोटीन्स ने करना है या एंजाइम्स ने करना है, एंजाइम्स दे आर प्रोटीन्स इन नेचर, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स ओनली, ठीक है। एक पर्टिकुलर, हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, हर एक एंजाइम में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स कितने हैं, वही 20 के 20, उन्हीं का एक डिफरेंट पैटर्न है। हर एंजाइम की एक ना एंजाइम का एक पैटर्न होता है। एक एंजाइम का लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, जो उसके वर्क करने का तरीका होता है। कोई भी एक एंजाइम वर्क करेगा उसका एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा। सो स्पेसिफिसिटी का वर्ड जो है वो आप हमेशा याद रखिए अपने, जब भी when you talk about the proteins and you talk about the enzymes, because every protein जो है उसमें एक specific number of the amino acids है, specific number है, specific places है, और फिर वो specific protein originate होता है, manufacture होता है, ठीक है, and then वो आगे एक प्रोटीन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। इसी तरह से जो एंजाइम्स है दे आर आल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर, वो भी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड से बनेंगे, हैं वही 20 अमाइनो एसिड्स है,
ठीक है, वो डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में ज्वाइन करते हैं और उनका भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, पर्टिकुलर नंबर होगा, पर्टिकुलर स्पेसिस पे जो अमाइनो एसिड्स बाइंड करेंगे, देन दे विल गिव राइज टू वन पर्टिकुलर एंजाइम and which will be functional, and moreover that will be functional and that will possess one specific activity. अब स्पेसिफिक एक्टिविटी कैसे होती है एक एंजाइम की, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस में, अब सपोज हेक्सोकाइनेज है, उसका जो सबस्ट्रेट है वो मैंने बताया आपको ग्लूकोज है, ठीक है, उसने अब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा कि उसका जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है ना वो अमाइनो एसिड्स का बना हुआ, उसकी एक एक्टिव साइट होगी, एक्टिव साइट पे भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे जो उस एंजाइम को they'll give one particular shape where that which shape will match that particular glucose molecule and that will fit into that like की एंड लॉक की तरह, जैसे एक की में एक लॉक फिट हो जाता है इसी तरह से एक फिट होगा, that's why it's named as a lock and key hypothesis, which is a working model of the enzymes and its particular substrates. So हर एक एंजाइम जो है, हर एक proteinaceous in nature है obviously, so that has an active site which binds to its particular substrate and specific activity and उसका एक particular product बनेगा। मतलब एंजाइम्स के साथ आपको हमेशा स्पेसिफिसिटी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी एंजाइम कोई भी फंक्शन कर रहा है और कोई भी प्रोटीन कोई भी फंक्शन कर रहा है, उसमें कोई भी सेट ऑफ अमाइनो एसिड्स हो गया, कभी नंबर इंक्रीज हो गया, कभी नंबर डिक्रीज हो गया, ये हो ही नहीं सकता। दिस इज मोर देन इम्पॉसिबल एंड दैट विल लीड टू दी very harmful and very deadly diseases, and that too can be a genetic disease and which can be passed from one generation to the next generation. So keep in mind, this is very very important. So but एक मेजर फंक्शन है जो कि causes biochemical reactions, that जो biochemical reactions हैं प्रोटीन्स के वो एंजाइम्स की फॉर्म में है, they are specific, ठीक है, जैसे structure of the enzyme that leads to the combine to the other molecules of the inside the cell obviously, inside the tissues नहीं होते हैं, inside the cell enzymes they work, either they work in a cytoplasm or the mitochondria or in any other organelle on the enzyme bound or the membrane bound enzymes हैं, receptors की तरह काम करते हैं, membrane पे होंगे, receptors होंगे, they'll bind to one specific substrate and they ट्रांसफर इट टू इनसाइड, और अंदर से कोई प्रोडक्ट बन गया है उसके भी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं मेम्ब्रेन पे, जो भी प्रोटीनेशियस हैं वो बाहर की तरफ लेके जाना है। सो इस तरह के मतलब लॉट ऑफ फंक्शंस हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय दी प्रोटीन्स एंड द एंजाइम्स इन आवर बॉडी, but so that's why we have hundreds thousands of the proteins in our body and many kind of enzymes are there in our body to perform different kind of functions, because every enzyme has a specific function and specific substrate. Some enzymes require other molecules such as vitamins and minerals. ये भी एक बड़ी बात है कि अब हमारे अब आ गया रोल हमारे मिनरल्स का एंड विटामिन्स का, क्योंकि बहुत सारे हमारे एंजाइम्स हैं which are proteins but they require some stimulus. Some vitamins they perform they as a hormones, and जो minerals हैं वो बहुत ही मतलब इंटीग्रल पार्ट होता है सम ऑफ द एंजाइम्स। जैसे मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ, जैसे अब हीमोग्लोबिन हो गया, टेक द एग्जांपल, हीमोग्लोबिन में क्या है कि हीमोग्लोबिन को हम ऐसे प्रोटीन ट्रीट करते हैं which gives the red color to the blood, okay, that exists in the red blood cells, but हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या हो गया कि ग्लोबिन जो है दैट्स अ प्रोटीन पार्ट एंड जो हीम है दैट्स अ मिनरल पार्ट, आयरन। सो many times the minerals are joined with the proteins and give rise to a one particular protein, form the particular protein, and those minerals when joined with the protein they are called the prosthetic groups of the enzymes, ठीक है। And some enzymes they require other molecules such as the vitamins and minerals I told you. Bodily functions depends upon the enzyme. अच्छा, अब क्या है कि some digestive enzymes हैं, some energy production के functions होते हैं वो वाले enzymes हैं, and then blood clotting में different kind of enzymes हैं, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, एंड मसल कंट्रैक्शन में भी डिफरेंट काइंड ऑफ है, मतलब यू कैन नेम एनी फंक्शन, you'll find different set of the enzymes or different types of the proteins over there. They are functional in different type of a body and for the different kind of a function. So that's why I named it as a specificity. हर एंजाइम हर प्रोटीन एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, उसका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा, एंजाइम्स का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, एंड दैट विल लीड टू दी स्पेसिफिक
फंक्शन, और दूसरा इनकी जो कंडीशंस होती हैं पीएच की और टेम्परेचर की, वो भी मेंटेन्ड होती हैं। मतलब प्रोटीन्स इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और वो भी जब फंक्शन होता है तो वहां भी टेम्परेचर की एक मेंटेनेंस होनी चाहिए। वो उसी टेम्परेचर पे ऑप्टिमम वर्क करते हैं, उसी पीएच पे भी, पर्टिकुलर एक पीएच पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब जो मैक्सिमम उनकी आउटपुट होती है किसी भी फंक्शन की, प्रोटीन्स की और एंजाइम्स की, वो एक पर्टिकुलर temperature and pH पे optimum मतलब maximum to the max they can produce, okay, they can show their specific function to the maximum, ठीक है, and then they act as a messenger too। अब some proteins होते हैं as a hormones act करते हैं, and you know that hormones are the messengers and they need in a very very small amount, और उनकी वजह से अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आती है ना, तो फिर मैसेजेस से मैसेजेस जाते हैं, जो वो एक गलत मैसेज भी जाता है। सिर्फ एक मैसेज से ही बहुत, आई मीन डाइजेशन में और प्रोटीन के फंक्शन में, इट लीड टू द डिजीज्ड कंडीशंस। लाइक अब प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, दे आर मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। स्टीरॉइड्स भी होते हैं जो कि मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है इसी तरह से, ठीक है। एंड देन सम एग्जांपल्स मैं देने वाली थी, जैसे हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, जैसे अब इंसुलिन है, इंसुलिन का मेजर फंक्शन क्या है? इंसुलिन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, उसके एक मेजर नंबर है अमीनो एसिड्स का, और एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस है। नॉट इवन अ सिंगल अमीनो एसिड कैन बी डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, or neither the number of the amino acids can be increased nor decreased. This is the fact which is associated with the proteins and with the amino acids, and वो वाले amino acids जो कि फॉर्म करते हैं एक हार्मोन्स को, और वो हार्मोन्स जो एक सेकंड मैसेंजर, मतलब कि एक तो खुद स्पेसिफिसिटी है और एक है। अब इंसुलिन का फंक्शन तो इट्स वेरी कॉमन। इंसुलिन क्या करता है बॉडी में? हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। मतलब शुगर क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट कर रहा है? एक हार्मोन। हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन किसका बना हुआ है? अमाइनो एसिड्स का। और अमाइनो एसिड्स कहाँ से बनते हैं? डीएनए के जेनेटिक कोड से 3 ट्रिपलेट के कोडोन में आते हैं। अब सपोज डीएनए में एक भी अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए तो एक अमीनो एसिड गड़बड़ हो जाए, और वही अमीनो एसिड विल लीड टू द डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन। सो इंसुलिन, फिर आप देखिए कि इंसुलिन का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि शुगर मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, और वही इंसुलिन अगर इम्प्रॉपर फंक्शनल हो गया तो क्या हो जाती है? डिजीज, डायबिटीज, ठीक है। और डायबिटीज क्या है? इसका आपको पता है कि कितना डिस्टर्ब करती है वो बॉडी को। even a single amino acid which is genetically inherited, that's why we call it type 2 diabetes। type 2 diabetes में क्या होता है कि इंसुलिन जो है उसकी स्ट्रक्चरल अमीनो एसिड्स और किसी तरह की कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आती है, सो दैट जो इंसुलिन है दैट्स बिकम्स द नॉन फंक्शनल, या फंक्शनल है ही नहीं, मतलब बिकॉज ऑफ लिटिल बिट डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर of the insulin, so that disease will go from one generation to the next generation। obviously type 2 diabetes is a hereditary disease, so हम पूछते हैं कि आपकी उसमें तो नहीं थी, उसमें, that is just because of the insulin only। और वो मैंने आपको बता दिया कि इंसुलिन जो जब अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस है which is working as a hormone and which is having a particular function। अब इंसुलिन क्या है? स्पेसिफिक है to metabolize the sugar molecules only, ठीक है। वो किसी और को करेगा ही नहीं। उसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रोल है, अगर वो डिस्टर्ब है तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, अब हम कार्बोहाइड्रेट का, शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसी एग्जांपल को लेके चलें, दैट वी कैन कंट्रोल द शुगर बिकॉज डोंट हैव, ठीक है। बट आप और अगर प्रोटीन का आप नहीं कंट्रोल कर सकते, इंसुलिन हैज टू बी देयर इन द बॉडी। अगर इंसुलिन ही नहीं होगा, अगर हम ऐसा कुछ नहीं खाते हैं जिसमें इंसुलिन नहीं होता या इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती है, देन हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। बट ऑन द अदर पार्ट, अगर हमें डायबिटीज है, ठीक है, एक डिजीज हो गई है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। हम शुगर लेना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कर देते हैं, वी आर फाइन। सो जो डिजीजेस हैं मोस्ट प्रोबेबली जो कार्बोहाइड्रेट्स की हैं और जो लिपिड से रिलेटेड होती हैं, दे आर कंपैरेटिवली लेस डेंजरस। बट जो इम्पोर्टेंट ज्यादा डेंजरस है, हार्मफुल डिजीजेस होती हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स, हार्मोन्स, मिनरल्स, इनके साथ जो रिलेटेड होती हैं, दे आर मच मोर हार्मफुल। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट के साथ, बट दे आर नॉट दैट हार्मफुल। लाइक दीज जो हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं,
इसका messenger, or they are more important functions. That's why I told you yesterday that the protein sparing action is very much necessary. You should have balanced diet, you should have carbohydrates and lipids too, so that your proteins, सिर्फ प्रोटीन लेके कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को बिल्कुल छोड़ के बात नहीं बनती है, ठीक है? That will lead to some other problem. So अब आपको पता है कि proteins have to do so many important functions, जो specific function है proteins के लिए. So proteins should be spared for doing those functions rather than कि उनको सिर्फ energy production के लिए रखा जाए. Energy production के लिए you can have the lipids and carbohydrates, as I'm repeating this time very many times, ठीक है? And then glucagon. अब glucagon भी क्या है? Glucagon is also a hormone. Hormone क्या है? इसमें भी amino acids का sequence है. That means this is also proteinaceous in nature. So I told you जो proteins हैं, एक तो वो structural proteins होते हैं, wear tear को देखते हैं. दूसरा वो functional proteins होते हैं, which are enzymes, जो specific होते हैं, specific metabolism. तीसरा proteins जो work करते हैं as a hormones, जो मैंने important बता दिया, insulin. The next is a glucagon. अब सीधा पता है कि जो glucagon is having a function exactly opposite to the insulin. अब इंसुलिन क्या करता है कि जब शुगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, हाइपर हो गया, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो गया, देन इंसुलिन कम्स एंड मेटाबोलाइज करता है इन नॉर्मल फंक्शंस. अगर इंसुलिन गड़बड़ है देन वो मेटाबोलाइज नहीं करेगा, ठीक है, दैट वोंट मेटाबोलाइज दी शुगर लेवल्स, और शुगर लेवल इंक्रीज रहेंगे, जो कि और डायबिटिक में जो और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी. But on the other hand, glucagon आ गया. This is also a hormone which is made up of particular amino acids, and वही 20 amino acids, उन्हीं का एक different combination है, उन्हीं का number है जिससे होता है, but इसका opposite है function. इसका मतलब क्या है कि जब हमने sometimes in the diabetic person or in a normal person, sometimes the sugar when it goes low, like hypoglycemia हो गया, rather than hypoglycemia हो गया, then this glucagon comes into action. Otherwise glucagon का कोई और function नहीं है. This is specific for the hypoglycemia. Insulin is specific for hyperglycemic conditions. Then what glucagon do when the hypoglycemic conditions comes? It performs its function to bring the lower level of the glucose or the sugar level in the body to the normal level. नॉर्मल में इसलिए कह रही हूँ, अगर ज्यादा कर देंगे फिर तो हाइपर कंडीशन हो जाएगी, फिर वो इंसुलिन का आ जाएगा, फिर इंसुलिन अगर लोअर करेगा, लोअर टू नॉर्मल करना होगा, अगर लो चला जाएगा तो फिर ग्लूकागॉन. ये तो फिर गेम प्ले होगा. एट ए टाइम वन हार्मोन वर्क करता है जो कि या आइदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा या हाइपो हो जाएगा, और अगर डायबिटिक है पर्सन तो उसमें तो फिर क्लियर कट है, इंसुलिन विल वर्क और वोंट वर्क इन द बॉडी. वी गिव आउट फ्रॉम, और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन एक नॉर्मल नहीं है, डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उसका जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो चेंज हो गया या हार्मफुल हो गया या प्रोडक्शन नहीं हो रही है, वट एवर, इट्स नॉट परफॉर्मिंग इट्स स्पेसिफिक फंक्शन टू लोअर डाउन द hyperglycemic function to the normal hyperglycemic condition of the sugar to the normal level. So sometimes insulin का injection हम फिर we take it from outside so that the insulin brings the hyperglycemic condition to the lower level and to the normal level, but sometimes it goes hypo. आपने देखा होगा डायबिटिक कंडीशन में many times it happens with the patient that the sugar level goes down to even. वो फिर ख्याल रखना पड़ता है उनको. एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, द ग्लूकागॉन. हो सकता है आपकी बॉडी में अगर डायबिटिक हुई है, सिर्फ इंसुलिन ही गड़बड़ था, ठीक है, इंसुलिन का ही स्ट्रक्चर डिफरेंट था या डिस्टर्ब था, ग्लूकागॉन का नहीं था. ग्लूकागॉन इज बिहेविंग नॉर्मली, बट ग्लूकागॉन तभी वर्क करेगा व्हेन द शुगर लेवल विल कम डाउन एंड देन इट विल वर्क specifically for the lower level of the sugars and it will bring up to the normal level, ठीक है. बट फिर इंसुलिन का क्या है, इंसुलिन इज नॉट वर्किंग एंड इंसुलिन फिर आउटसाइड से. दिस इज अ complicated situations with the diabetic. This I have taken these two examples of the hormones to just understand how important the hormones which are made up of amino acids and how they behave. Okay, they are also proteinaceous in nature. Likewise, we have other amino acids like HGH, human growth hormone, जिससे क्या होता है कि अगर वो नहीं बनेगा तो स्टंटेड, ड्रवाफ रह जाते हैं लोग, ठीक है. वो भी एक हार्मोन है जो ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है. एंड देन एंटी डायरेटिक हार्मोन,
जो क्या करता है, जो दिस हार्मोन्स सिग्नल करता है क्या, टू किडनी टू रीअब्सॉर्ब द वाटर, ठीक है, जितना वाटर कंटेंट है। अदरवाइज सारा का सारा वाटर जो है दैट विल मूव आउट, यू विल हैव द आई मीन जो मोर एंड मोर यूरिन पास करने वाली फीलिंग होती है ना, वो आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज दिस ADH, एंटीडायरेटिक हार्मोन, दिस इज नॉट वर्किंग, so this will also disturb your kidney function test, फिर kidney functions में। and adrenocorticotropic hormone है, that is also for this is also made of the amino acids, and that also have the specific function which is the stimulate to release the cortisol, a key factor in the metabolism। अब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उससे किसी भी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। एंड देन provides structure, which is also one of the major function of the amino acids। some proteins are the fibrous, ठीक है, and then provides the cells, tissue and stiffness and to the rigidity। आपने पता है कि आपका हर कोई बॉडी फंक्शन that should have some particular rigidity and particular stiffness होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो फिर दिक्कत आएगी। और सम में कुछ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ proteins, and that is also dependent upon the combination of the proteins which gives rise to that particular kind of a protein। ऐसे एक प्रोटीन्स हैं, जैसे आप ले लो कैरेटिन हो गया, कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, ठीक है, दैट हेल्प्स टू द कनेक्टिव फ्रेमवर्क एंड सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। आपको पता है कहीं कहीं इलास्टिसिटी की जरूरत है, वहां पे इलास्टिन प्रोटीन होगा, कोलेजन की जरूरत है और कैरेटिन की जरूरत है, ठीक है, तो उसका उसी हिसाब से बना होता है, ठीक है। कैरेटिन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच गिव्स which is a important part of the skin, hair and nail, जो ज्यादा brittle होते हैं, ठीक है। नेल्स ब्रिटल होते हैं तो उसकी हार्डनेस एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसका कॉम्बिनेशन उस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। And then collagen is the most abundant protein in our body and is a structural protein of our bones, tendons, ligament and cells, so that will also be having a rigid and elastin several hundred times more flexible than on the other hand। I mean, elastin जो है वो collagen के comparatively that's more elastic, so it is highly elastic, allows many tissues to your body to return to the original shape after stretching and contraction, such as your uterus and even I mean uterus की जो expansion and contractions होती हैं, that is because of the elastin, because elastin जहाँ पे protein है, जहाँ पे ये मेकअप करता है टिश्यूज को, उन टिश्यूज में एक पर्टिकुलर एक फंक्शन आ जाता है स्पेसिफिक कि उनमें स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी होती है, और जब स्ट्रेचिंग वाला फंक्शन खत्म हो गया देन दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, दैट कंट्रैक्शन, दैट मींस the elastin protein works over there। so this is also required in so many, I mean in uterus it's required, so this protein works over there, ठीक है। इस तरह के functions हैं amino acids के। and now the proteins they maintain proper pH, so how the concentration of the acids and bases in the blood and other body fluids में उनकी pH को maintain करना, this is also one of the major challenge which is done by the proteins। like stomach में क्या होता है, ठीक है, स्टमक में क्या है, पीएच क्या होती है, स्टमक की एसिडिक होती है 2 होती है, टोमेटो जूस की जैसे 4 है, ब्लैक कॉफी की 5 है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड की न्यूट्रल होती है जैसे 7.4, वाटर की होती है 7.2 एंड देन इट्स वेरी नियर टू दिस एंड देन 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10 होती है, एल्कलाइन होती है, सोपी वाटर जो होता है उसकी भी 12 होती है पीएच, दैट्स एल्कलाइन। सो ये बहुत ही बफरिंग सिस्टम के भी अमीनो जो प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, बफरिंग सिस्टम का, और बॉडी में आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के इनसाइड का जो जैसे स्टमक का, इंटेस्टाइन का और ब्लड का इनसाइड जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके जो पीएच रेंज को मेंटेन करने में भी दे रियली हेल्पफुल, ठीक है। एंड बट क्या होता है कि एक कांस्टेंट पीएच नेसेसरी होती है। अब ऐसा नहीं है कि पेट स्टमक में हमारे जो है वो 2 पीएच होती है, एसिडिक होती है, दैट्स नेसेसरी फॉर द डाइजेशन, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, द अमाउंट ऑफ द एसिडिक हो जाता है, बट देन वी विल फील सम प्रॉब्लम्स फॉर दैट फंक्शन टू मेंटेन ऑफ ये नहीं कि टू क्रिएट और टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर पीएच, आई मीन डिफरेंट पीएच, स्टमक में स्टमक की, बॉडी में बॉडी की, और जो कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू की, ब्लड में, वो मेंटेन करने के लिए that's very important, the proteins amino acids they play a very much important role। जैसे हीमोग्लोबिन है, binds to small amount of the acids helping to maintain the normal pH of the blood। अब हीमोग्लोबिन is a protein
which is very important in the blood, वो उसके कारण because of that hemoglobin जो blood की pH है 7.4 that gets maintained, ठीक है। एंड उसके बाद है बैलेंसेस फ्लूइड्स। अब ये फ्लूइड्स को भी बैलेंस करता है। प्रोटीन्स क्या करते हैं, दे रेगुलेट द बॉडी प्रोसेसेस टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंसेस लाइक एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन आर प्रोटीन्स इन आवर ब्लड प्रेजेंट इन आवर ब्लड जो मेंटेन करते हैं बॉडी फ्लूइड बैलेंस और क्या करते हैं, रिटेन करते हैं बिकॉज आवर बॉडी और द ब्लड शुड मेंटेन सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द वाटर, ठीक है। वाटर कंटेंट लो हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, सो वी हैव टू मेंटेन ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द वाटर इन आवर ब्लड। So albumin and globin proteins हैं, they maintain one particular amount of the water in the blood. This is also function of the proteins. So you have to remember, like अगर आप particular proteins के names भी अगर याद नहीं रहेंगे ना आपको, अगर आप balances भी लिख देते हो कि yes water balance है, then also common protein का function आएगा, then you can write these things कि एक water balance को भी करते हैं, ठीक है। एंड तो जो बिकॉज ये मैं आपको बताती हूँ सेल्स में भी क्या होता है कि इसका एक फंक्शन है, वो आपके अभी इतना डिटेल में एक्चुअली है नहीं है, मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ क्योंकि जो सेल्स हैं उनके अंदर भी वाटर का कंटेंट यू हैव टू मेंटेन, बट क्या है कि वो एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है। जो मेम्ब्रेन है सेमी परमियल मेम्ब्रेन है, वो ना अंदर बहुत ज्यादा जाने देती है और ना अंदर से बहुत ज्यादा बाहर जाने देती है। वो उसके भी एक पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, वो हमेशा हमेशा आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिनरल्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का या ग्लूकोज का या किसी भी चीज का या इवन वाटर कंटेंट को मेंटेन रखती है। अगर बहुत ज्यादा सेल्स में पानी का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो सेल हो जाएंगी और बस्ट हो जाएंगी, सो अलाउ ही नहीं करती मेम्ब्रेन, ठीक है। और मेम्ब्रेन जो है वो साइड से क्या है, प्रोटीन्स की बनी होती है और प्रोटीन्स अलाउ ही नहीं करते हैं, ठीक है। इन दिस वे I'm just telling you in a very simple language कि जो protein है that is plasma proteins हैं, they are major content of the plasma membrane and plasma membrane is a semi-permeable membrane and it is very particular, that membrane is particular which doesn't allow anything to go in and anything to come out, ठीक है। और in water content this is also very specific, it doesn't allow to much amount of the water to enter into that, if it allows that the cell will swell and that it get burst, but ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा अमाउंट पानी का जितना particularly required है उससे भी बाहर चल जाए then the cell will shrink, ठीक है। बोथ इन बोथ द वेज जो हमारी सेल है और मेम्ब्रेन के फंक्शंस है और जो सेल के फंक्शंस हैं, अंदर इतना सारा मेटाबॉलिज्म और इतने सारे ऑर्गेनेल की जो पर्टिकुलर फंक्शंस है वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे इन केस ऑफ द स्वेलिंग, इन केस ऑफ द श्रिंकिंग टू, जस्ट इम्बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ द water. So these are one particular albumin and globulin, these are particular kind of a protein which resides in the membrane, ठीक है। और ये फंक्शन करते हैं टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ द वाटर इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये ना तो अलाउ करते हैं स्वेलिंग ऑफ द सेल और ना ही अलाउ करते हैं श्रिंकिंग ऑफ द सेल, ठीक है। तो दिस टाइप का जो फंक्शन है दिस इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय द प्रोटीन्स। अब क्या है, bolsters immune health। अब दूसरी बात ये है कि सीधी सी बात है, आजकल जो कोविड आपको चल रहा है, you have learnt about the antibodies they also have some particular kind of the amino acid sequence, they are also the enzymatic they are also the proteinaceous in nature, they are also having the one particular kind of the amino acid sequence। फिर वही हो गया, a particular kind of amino acids होगा that will give rise to one particular kind of antibody or particular kind of antibody that will perform the specific functions। So हमारा immune system का बहुत बड़ा part होते हैं antibodies, ठीक है। If we have the good immune system, we have a particular kind of the antibodies and that will fight with the particular kind of the antigens, ठीक है। स्पेसिफिसिटी, जो स्पेसिफिसिटी है ना, ये वर्ड हमेशा प्रोटीन्स के साथ एक एसोसिएटेड रहता है। जो प्रोटीन्स हैं दे आर आल्सो स्पेसिफिक, दे आर आल्सो स्पेसिफिक फंक्शंस, उनका अमीनो एसिड सीक्वेंस स्पेसिफिक होगा। एंड देन एंजाइम्स, दे आर आल्सो फंक्शनल प्रोटीन्स वी कॉल, उनका भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, अमीनो एसिड्स का पर्टिकुलर फंक्शन होगा, ठीक है। अब हार्मोन्स हैं, वो भी प्रोटीन सम अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, जो कुछ प्रोटीन्स हैं जो एज ए हार्मोन्स वर्क करते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा और वो पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे।
फिर चौथी बात ये आ जाती है कि जो एंटीबॉडीज हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स, वो भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, तो उनका स्पेसिफिक होता है। तो जो प्रोटीन की जो फंक्शनैलिटी है, जो भी कोई एंजाइम्स, वेदर एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और प्रोटीन्स इटसेल्फ, दे ऑल आर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द प्रोटीन्स, कलेक्टिवली कहते हैं। तो इनके साथ एक स्पेसिफिसिटी वर्ड जुड़ा हुआ होता है कि ये स्पेसिफिक फंक्शंस ही परफॉर्म करेंगे। और अगर इनके स्ट्रक्चर में इवन सिंगल माइन्यूट अमीनो एसिड की चेंज आती है तो सारा का सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज दे परफॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, हार्मोनल, एंजाइमेटिक, स्ट्रक्चरल, defense mechanism, everywhere in the body the proteins, they perform the important functions. So protein sparing is much more necessary, so have carbohydrates and lipids for the energy levels, so that the proteins can perform much more important functions which I have explained to you. Now transport and stored nutrients, ठीक है। प्रोटीन्स में क्या होता है कि और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसमें ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं एंड स्टोर भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये फंक्शन थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट नो, दैट्स आल्सो देयर। लाइक जैसे प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, ब्लड शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ऑक्सीजन लेवल्स। ऑक्सीजन लेवल कैसे, ठीक है, ये कैसे मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं इनका। like hemoglobin है, that oxygen binds with that, oxyhemoglobin बनता है, then we respire, and उसके बाद फिर उसके साथ oxygen will converted into carboxyhemoglobin, and then it will exhale, inhale करते हैं हम oxygen and that is converted into the oxyhemoglobin, फिर exhale करते हैं हम carbon dioxide because it is converted into the carboxyhemoglobin, and that's a very important part of the respiration। और respiration बंद हो जाए, देखो फिर अगर प्रोटीन हीमोग्लोबिन नहीं है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो कहानी खत्म, वी कैन नॉट रिस्पायर। सो दिस इज अ मच मोर इम्पोर्टेंट, रेस्पिरेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर लिविंग सिस्टम्स, ठीक है, फॉर लिविंग ह्यूमन बींग्स और फॉर लिविंग एवरीबडी जो भी एरोबिक हैं एनिमल्स, ठीक है। सो अब इसके बाद एक आ जाता है प्रोवाइड। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन है। आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द हीमोग्लोबिन अगेन एंड अगेन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट these are also they perform this type of functions too। अब क्या है, लास्ट फंक्शन है कि जो प्रोटीन्स है, दे प्रोवाइड एनर्जी टू, बिकॉज प्रोटीन्स कैन सप्लाई योर बॉडी विद एनर्जी टू। जैसे प्रोटीन कंटेन्स करते हैं कैलोरीज पर ग्राम, हम जो भी लेते हैं उसमें हमें पता होता है कि इतने पर्टिकुलर इतने ग्राम में इतने कैलोरीज हैं, ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स, एंड एवरी प्रोटीन हैज अ डिफरेंट कैलोरीज, मतलब एवरी प्रोटीन हैज अ डिफरेंट कैलोरीज ऑफ पर ग्राम, ठीक है। द सेम अमाउंट प्रोवाइड्स बाय द कार्ब्स, उतना ही कहते हैं कि उतना ही ये प्रोवाइड भी कर सकते हैं एनर्जी। After performing so many important functions, proteins can provide that much energy too, which the carbohydrate provides, ठीक है। And fats can supply the most energy, like 9 calories per gram। Fats थोड़ी ज़्यादा energy provide करते हैं, so that's why they are stored, ठीक है, in our body। And then in the last, I've discussed all the 9 functions। Basically, if you have understood, these are the major basic functions हैं immune proteins के, जो basically 9 important functions थे which I have explained, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई दिक्कत लगे तो फिर you can ask anything and then you can ask, ठीक है। And अब अगर मैं sum up करती हूँ इस lecture को, then you can see that the protein has many roles in our body। It helps in repair and build your body tissues, allows metabolic reactions to take place in the coordinates bodily functions, ठीक है, to coordinate, and in addition to provide your body and the structural framework, proteins also maintain the pH of and body fluid balance also, like swelling and shrinking of the cells I told you, ठीक है, pH balance भी करते हैं ये, ठीक है। Finally, they keep your immune system strong in the form of the antibodies, ठीक है, they are the active part of the defense mechanism, transport करते हैं and store करते हैं nutrients, and can also act as an energy source if needed, okay। And collectively these functions make protein one of the important nutrients for our health, and they are much more important if you compare with other things। So let's stop here for the function of tomorrow। We'll continue with the lipids only, ठीक है। कल लास्ट सेशन रहेगा ना डीएनएचई का? हाँ जी, इसका 1 का डीएनएचई 1 का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके आगे सर मैं तो अपना सिलेबस लेके चल रही हूँ ना,
जिस हिसाब से चल रहा है। मैम मेरे कहने का मतलब ये जो ये DNHE1 चल रहा है, इसका भी 4 सेशन करने हैं या इससे ज्यादा करने हैं? आई डोंट थिंक सो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, आप फिर जितने भी बात करेंगे, करवाना चाहें कोई फिर दिक्कत बात नहीं है। फिर ठीक है, मैं सिलेबस देख लेती हूँ, तो कोई चक्कर नहीं। अगर बच्चों को ज्यादा लगाने हैं तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इवनिंग सेशन में आप कितने भी सेशन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आई ओके। डोंट हैव, ठीक है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है सर, थैंक यू जी। आप सर स्टूडेंट से पूछ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे, मैं क्लोज करती हूँ। ठीक है जी।